Very good day, everyone. In our last lecture, we spoke about the first type of mathematical tools that was called as derivatives. And now we are going to talk about the second part that is called as integration. By the way, just to keep you posted, मैंने आपको बताया था what is derivative, what is integration. In simple words, मैंने बोला suppose if you have a body, बड़ा body है, and you have to study the body. There is no need to study the entire huge body. What we can do is we can divide the body into छोटू parts and study one small part. Whatever is true for one part is true for the entire stuff. That is called as derivative. मतलब एक huge body को आपने एक को अनेक बनाया, is called as derivative. But if you have small parts and if you gather them together to make it one, that is called as integration. So पहले पार्ट में हमने किया था derivative. Now we are going to do integration. Guys, in simple words, जैसे मैंने बोला एक को अनेक बनाया, that is derivative. अनेक को एक बनाया, that is integration. So it's very clear. Derivative and integration are ulta of each other. That is one thing which we can understand in simple words. Let me make my sentences very clear. I am not over here to teach you mathematics. I am over here to teach you physics. So जो भी mathematics लगेगा उसको physics में कैसे apply करके आगे बढ़ने का is my task. Not to teach you the significance of integration, derivative, वो सब आप maths में करोगे. PCM students will do it in math. PCB set of students will do it in their foundation. So, from physics point of view, when I talk about integration का part, first, integration is an ulta of derivative. When we talk about integration, let me say, first of all, okay, the representation of integration is given by like this. ये तेरा इंटीग्रेशन का साइन होता है. d by d x होगा या t होगा या कुछ भी होगा. Okay, that is your derivative. But we are talking about integration. इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं. ये साइन को इंटीग्रेशन बोलते हैं. Okay, when you talk about integration, there are two types of integration. The first type of integration is called as indefinite integration. And the next part is called as definite. Some people call this as infinite and then finite. ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग. Infinite integration and finite integration. Okay, now and finite integration. Some people call it also like this. That is infinite integration and definite integration. Okay, what do I mean by saying infinite? इतना तो clear है यार. Integration का मतलब addition होता है. अगर आपको मालूम है addition कहां से कहां तक करना है, that is called as finite. Second वाला finite. जब आपको मालूम ही नहीं है कहां से कहां तक करना है, उसको बोलते हैं infinite. That is infinite integration when limits of integration are not given. And finite का मतलब when limits of integration are given. This is your two
टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। पहचानने का कैसे, पहचानने का कैसे, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है। अगर इसके नीचे और ऊपर कुछ लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड एज अपर और हायर लिमिट। अगर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट और डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अगर लिमिट्स नहीं लिखा है, ये नीचे और ऊपर कुछ नहीं लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। सो देख के मालूम पड़ता है हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं या इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर फाइनाइट इंटीग्रेशन। मींस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, एडिशन करना है, 2 से लेके 5 तक हमको एडिशन करना है। ओके, 2 से 5 तक, मतलब अगर मैं बोलूं ये एक्स एक्सिस है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5 के बीच में जितने भी छोटे छोटे पार्ट होंगे उनको सबको ऐड करो, दैट इज योर इंटीग्रेशन। 2 to 5 के बीच में जितने छोटे पार्ट होंगे उनको ऐड करके आपको आंसर लाना है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। सो moral of the story, guys, integration is result of derivative. It is represented by this sign. Two types of integration: infinite when limits are not given, finite when limits are given. Finite integration को नीचे और ऊपर कुछ लिमिट लिखते हैं, that is called as lower limit and called as higher limit. ऐसे हम उसको बोलते हैं, that is your limits of integration. Okay, now बड़ा एक सिंपल सी बात है। Suppose if I say y is equal to f of x, अगर ऐसा फंक्शन दिया है तो इसका इंटीग्रेशन अगर करना होगा तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ f of x with dx। डेरिवेटिव में क्या करते थे, विद रिस्पेक्ट टू dx, यहां पे विद dx। यार डेरिवेटिव में हम क्या बोलते थे, d by dx of f of x, याद है हम ऐसा बोलते थे। मतलब डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x। अब यहां पे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x with dx। दिस इज with respect to मतलब नीचे, with dx मतलब मल्टीप्लाई। ये फर्क है, डेरिवेटिव में डिवीजन होता है, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन। याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाए। ओके, सपोज इफ आई राइट v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो कैसे लिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v is a function of y there, चल v is a function of y, so integration of function of y with dy। okay, a is a function of v, so कैसे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ v with d। v is a function of t बेटा, तो क्या लिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f of t with d, with d। यहां पे with dx, with dy, with dv, with dt, ये सब आना चाहिए, दैट इज योर इंटीग्रेशन का ये तरीका होता है लिखने का। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग योर इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, वन बाय वन रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है, that is integration of x raised to n will be always with dx। ये कौन सा इंटीग्रेशन है मेरे को बताओ, देख के मालूम पड़ता है। साइन तो इंटीग्रेशन का है, नीचे और ऊपर कुछ लिखा है बेटा, नहीं लिखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन करना है, लेकिन कहां से कहां तक मालूम नहीं। इसका फॉर्मूला है x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c plus c plus c मतलब where c is your constant of integration। c is your constant of integration। जब भी इनफाइनाइट इंटीग्रेशन आएगा तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जरूरी नहीं कि आप c से लिखो, कल आप k से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, दैट इज योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने c लिखा। सो व्हाट इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर इंक्रीजेस बाय 1 एंड द नया पावर इज द डिनोमिनेटर।
पहले वाले केस डेरिवेटिव में क्या था याद है? डेरिवेटिव में हाँ क्या था? पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट, पावर डिक्रीजेस बाय 1। यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, यहाँ पे पावर कम होता था ना, अभी पावर बढ़ेगा, एंड द न्यू पावर इज द डिनोमिनेटर, न्यू पावर इज द डिनोमिनेटर। ओके, so what is the rule? Okay, this is the formula which is there, formula which is there, x raised to n का formula, it is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, where n should not be equal to -1, ये बहुत important है, x should not be equal to -1, sorry, n का value should not be equal to -1, -1 रहेगा तो क्या मैं बताएगा, example, बेटा if I say x integration of x raised to 1 dx, सिर्फ x नहीं लिखा है, x y x dx, so can you write this as x raised to 1 dx, तो n का वैल्यू क्या हो गया 1, so what is this, 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus c, so what's the answer beta, x square by 2 plus c, integration of x square dx, चल जल्दी बोल, it is x 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus c, that is x cube by 3 plus c, integration of x raised to half dx, so it is x raised to half plus 1 upon half plus 1, that is x raised to 3 by 2 upon 3 by 2, that is 2 by 3, 9 plus c भी तो लिखना है, constant of integration बेटा, that is 2 by 3 x raised to 3 by 2 plus c, okay, that is your integration if I say x raised to minus half चलता है, it is what, x raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1 plus c, ना minus half plus c plus 1 will be half, 2 पलटी मारेगा, x raised to half plus c, okay, that is your polynomial function, that is polynomial function. Second is your trigonometric function, integration of sin of x into dx will be minus cos x plus constant of integration. Integration of cos of x dx, that is sin of x plus c. यार इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ cos क्या था? डेरिवेटिव ऑफ cos was minus sin, तो sin का क्या रहेगा? minus cos is sin. Integration of tan x, it is sec square x plus, okay, such kind of thing, that is about your okay, that is your trigonometric function, that is your, sorry yaar, integration of sec square will be tan of x plus बराबर, हाँ, okay, now that is about trigonometric function. मैं बोलूं logarithmic function, integration of x raised to minus 1 dx will be log of x plus, जब हम बोलते हैं ना n should not be equal to minus 1, if n is equal to minus 1, तो क्या होता है? It is log of x, कल को आप लिखो x plus 5 raised to minus 1 into dx, तो क्या रहेगा? It is log of x plus 5 upon 1, coefficient of x, ऐसा है, okay. Then if I say exponential function का तो कुछ नहीं यार, इसको तो वरदान है, e raised to x dx will be what? E raised to x plus c. That is your formula for your integration. This is your formula for your integration. Okay. Now, just in case अगर कुछ examples अगर ले लूं, एक छोटे examples ले लूं ताकि एक picture clear हो जाएगा. हमने रूल्स लिख दिया पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, special case of polynomial function when n is equal to -1, okay. चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा, integration of 2x plus 3, integration of
2x plus 3 square dx from 2 to 5। ये कौन सा इंटीग्रेशन है? ये कौन सा इंटीग्रेशन है? ओके सर, दिस इज योर 2 to 5। चलो मैं थोड़ा और सिंपल करता हूँ, 0 to 2 और सिंपल करता हूँ। दिस इज योर डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं आएगा। अगर आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम है तो आपको प्लस सी नहीं डालने का। ये सब आप मैथ्स में देखोगे, क्यों डालने का क्यों नहीं डालने का। अभी सिंपल सी बात है, व्हाट इज दिस इक्वल टू? कोई अगर बोले फॉर मी एज अ स्टूडेंट, मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करेगा, 4x² प्लस 2 3 6 6 2 12 12x प्लस 9 dx फ्रॉम 0 to 2। मानता है? इसको क्या कर दिया मैंने, आई हैव ओपन दिस ब्रैकेट, स्क्वायर था ना बेटा, 2x plus 3 square into dx। ओके चलो, so now what is this बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x² from 0 to 2 dx plus 12 integration of x dx plus okay 9 integration of dx। यहाँ पे मैं बताना भूल गया, अगर सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब x raised to 0 into dx। So what is that? X raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1 plus c, isn't that x plus c? So integration, अभी ये 4 तो बाहर आ गया, चलो this is 4। what is integration of x square, x cube by 3 from 0 to 2 plus 12 x square by 2 from 0 to 2 plus 9, सब जगह 0 to 2 रहेगा, 9 x from 0 to 2। बोलो क्या हो गया, 4 by 3। what is x cube is upper limit minus the lower limit। x के जगह पे 2 डाल 8, x के जगह पे 0 डाल 0 plus this is how much 6। फिर what is that, 4 minus 0 plus 9, this is 2 minus 0, upper limit minus the lower limit। what is this, 8 4 are 32 by 3 plus 24 plus 18। ऐड कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा, that will be your answer। Okay, that is how we do such kind of question which is this is your definite integration। जानबूझ के मैंने लिमिट दिया ताकि आपको समझ में आए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे डालने का। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होगा तो प्लस सी नहीं लगाने का, अगर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है तो प्लस सी लगाने का। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इफ आई से इंटीग्रेशन ऑफ sin of 2x minus 4, इंटीग्रेशन ऑफ sin of 2x minus 4 dx, इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है। सबसे पहली बात, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस ऑफ 2x minus 4 upon the coefficient of x is how much, 2 plus c। okay, then suppose if I say integration of 1 upon 5x minus 4 dx, this will be log of 5x minus 4 upon 5 plus c। suppose if I say integration of e raised to 2x dx, इसको तो बढ़ना है, e raised to 2x upon 2 plus c, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो सब नीचे आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x जो रहेगा वो सब नीचे आएगा। ओके, so that is about your integration का। अब now the question is, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्या है, हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट के आगे हम लिखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी के आगे लिखते हैं एक्सेलरेशन। अब बात समझ, डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी चाहिए, मतलब आगे जाना है मतलब डेरिवेटिव। वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो आगे जाना मतलब डेरिवेटिव। डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन चाहिए, 2 बार आगे जाना पड़ेगा मतलब डबल डेरिवेटिव। बराबर, ये तो हो गया। तो आगे जाना मतलब डेरिवेटिव, बहुत पीछे भी तो आना हुआ। अगर एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन, उल्टा हो डेरिवेटिव। वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो 2 बार इंटीग्रेशन। सिंपल।
आगे जाना है, जिंदगी में आगे जाना है तो डेरिवेटिव, पीछे आना है तो इंटीग्रेशन। ओके, इतना बात समझ लो, कभी मिस्टेक नहीं होगा। कभी भी प्रॉब्लम है, ये देखो क्या दिया है और क्या निकालना है, पहले ये देख लो क्या दिया है क्या निकालना है, उससे समझ में आएगा क्या करना है और फिर वो करो। डोंट जंप टू कंक्लूजन, नहीं होगा। ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी चाहिए, आगे बढ़ना है, डेरिवेटिव। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, आगे बढ़ना है, डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी चाहिए, पीछे आना है, इंटीग्रेशन। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, पीछे आना है, इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट, दो बार पीछे आना है, मतलब दो बार इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रेशन। चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ओके, और फिर उसके बाद में कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं। That will help us out. That will help us. Okay, that will help us out to understand this entire stuff. बेटा मैं बता रहा हूँ, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन लोगों को डर लगता है, लेकिन इंटीग्रेशन जितना सिंपल है ना, डेरिवेटिव से भी सिंपल इंटीग्रेशन होता है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। So let us take some examples, guys, to understand this. To understand this, suppose if I say, beta, suppose if I say first question, that is example number 1. Suppose v is equal to 2t square, ये equation दिया है, v is equal to 2t square, find the displacement when time is 2 such that okay, such that find the displacement when time is 2 such that when time was 1 second, displacement was, time is 1 second, displacement was 3 meter. ऐसा कुछ दिया है, वो सब छोड़, कुछ टेंशन मत ले। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा, दिया क्या है, ओके, दिया क्या है, वेलोसिटी दिया है और क्या निकालने का है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आगे आ रहे हो, पीछे आ रहे हो, पीछे आ रहे हो ना, पीछे आ रहे हो मतलब इंटीग्रेशन। पूरे प्रॉब्लम में एक बार इंटीग्रेशन होने वाला है, पूरे प्रॉब्लम में एक बार इंटीग्रेशन होने वाला है। सो चलो लेट अस टॉक अबाउट सॉल्यूशन। v is equal to what, 2t square। अभी मेरे को चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट व्हाट इज वेलोसिटी डिफाइंड एज, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज dx by dt। समझ में आया? तो देख मैंने x ला दिया। Now let us take all x at one side, all time at other side। उधर ले लिया। Now integrating both the sides, integrating both the sides, step by step करो, कभी मिस्टेक नहीं होएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx, टू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t square dt, रुक जा, रुक जा। Now हमको क्या, टाइम का लिमिट क्या, टाइम इज 1 to 2, टाइम इज 1 to 2, लेकिन जब टाइम 1 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, when time was 1 displacement was 3। now when time is 2 displacement मालूम नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। when time was 1 displacement was 3, when time is 1, देख टाइम का लोअर लिमिट 1 तो डिस्प्लेसमेंट का लोअर लिमिट 3, when टाइम का लिमिट इज 2 डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं। what is integration of dx, integration of dx is x from 3 to x। इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर क्या होता है बेटा, t क्यूब by 3 ना, पावर इंक्रीजेस by 1 and the नया पावर इज द डिनोमिनेटर from 1 to 3, 1 to 2 सॉरी ना। now सिंपलीफाई कर लो, दिस इज x minus 3 is equal to 2 by 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर है। now t की जगह पे 2 डाल, दिस इज दैट 8 minus 1। so what do we get, 8 minus 1 is 7, 2 by 3 into 7, that is 14 by 3। so x is equal to what, 14 by 3 plus 3, that is 14 plus 9 by 3, isn't that equal to 23 by 3 meter? That's your answer। so what is the displacement, 23 by 3 meter, that is your answer for it, that is your answer for it। और क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन से नहीं होएगा, काम नहीं होएगा, और क्वेश्चन लेते हैं। ओके चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। when example 2, v is equal to 2x, v is equal to 2x,
find the displacement when time is 2 seconds. When time is 2 seconds, such that x was equal to such that when time was 1, x is equal to 3 meter. वापस वही, when time was 1, x is equal to 3 meter, इक्वेशन सिर्फ अलग दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ इक्वेशन अलग कर दिया. ओके, अब देखो पहला हिंट देखो, दिया क्या है वेलोसिटी दिया है, हिंट दिया क्या है वेलोसिटी, चाहिए क्या मेरे को डिस्प्लेसमेंट. तो मैं आगे जा रहा हूं पीछे जा रहा हूं, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, आगे जा रहा हूं पीछे जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, आगे लिखने का एक दूसरे के आगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए मतलब इंटीग्रेशन. चलो सॉल्यूशन, पहले v is equal to 2x, लेकिन सर मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो I have to get displacement. Can I write this as dx by dt is 2x. All x at one side, dx upon x is equal to 2 times dt. Now integrating both the sides. यहाँ पे फिजिक्स आता है बस, इसके बाद मैथ कर रहे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dx by x is equal to 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt. टाइम का लिमिट क्या है, from 1 to 2, और डिस्प्लेसमेंट का जब टाइम 1 था तो डिस्प्लेसमेंट 3 था, टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट x है, मालूम नहीं है. What is dx by x called as? Log of x from 3 to x, that is 2 times dt का 3 from 1 to 2. So this is what, log of x minus log of 3. Got it beta? Log of x minus log of 3, this is 2. Upper limit minus lower limit, 2 minus 1 is 1, so that is 2. So what is this? Log of x by 3 is equal to 2. Log निकालना है तो take log over there, so x by 3 is e raised to 2. ये प्रॉपर्टी है. So what is x equal to 3 e raised to 2. That's your answer. ना ये सब मैथ है बेटा, ये सब मैथ है. This is property of it. Log अगर है तो दोनों साइड एंटी लॉग लो. लॉग है, लॉग का इफेक्ट निकालना है तो दोनों साइड एंटी लॉग लिया तो e raised to 2 हो जाएगा. This will go as a power. Okay, that is your math का concept. Okay, next example है बेटा, एक अच्छा सा एग्जांपल है. Suppose if acceleration is equal to 2x. If acceleration is equal to 2x, ये इक्वेशन है. Find v when x is equal to 2. Find v when x is equal to 2 such that when x is equal to 1, v is equal to 2 meter per second. When x is equal to 1 meter, v is equal to 2 meter per second. ये दिया हुआ. पहले हिंट समझ लो. बॉस दिया क्या तेरे को एक्सेलरेशन दिया है और तेरे को वेलोसिटी चाहिए. एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी चाहिए. तू आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है. सर मैं पीछे आ रहा हूं. पीछे मतलब इंटीग्रेशन. सुना, सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या था भाई? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2x, लेकिन मेरे को वेलोसिटी लाना है. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड बाय dv by dt as 2x. बट सर इसमें v, t और x अलग अलग हो गया ना. कैन यू राइट लाइक दिस? dv by dt into dx by dx. जानबूझ के लिख रहा हूं. रीअरेंज कर. dv by dx into dx by dt. ये नीचे मैंने इंटरचेंज कर दिया, कर सकते हैं. What is dx by dt called as? v. Isn't that v? dv by dx is 2 times x. देख, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट. This is arrangement. Converting acceleration in terms of time, converting acceleration in terms of velocity and displacement. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. बहुत काम आएगा आगे. ओके, सो v dv रीअरेंजिंग है 2x dx. अभी क्या करूं? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. काम खत्म.
VdV is equal to constant है इंटीग्रेशन ऑफ x dx। x का लिमिट क्या है? फ्रॉम 1 टू 2। x का लिमिट 1 टू 2। जब x 1 था तो वेलोसिटी कितना था? 2। जब x तेरा 2 है तो वेलोसिटी v मालूम नहीं है। इंटीग्रेशन करना है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ vd? v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 2 टू v। और ये क्या हो गया? 2। इंटीग्रेशन ऑफ x इज व्हाट? x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 टू 2। जल्दी बोल। v स्क्वायर बाय 2 माइनस अपर लिमिट माइनस 4 बाय 2। 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1। सो v स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इज 3। सो v स्क्वायर बाय 2 इज बड़ा 5। सो v स्क्वायर इज 10। So v is how much? √10 मीटर पर सेकंड। सब अलजेब्रा है, ये सब अलजेब्रा है, मैं कोई इसमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक बार बता दिया कैसे करने का। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके करना है। एंड यू विल नेवर 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 एवर मेक अ मिस्टेक इन दैट, नेवर मेक अ मिस्टेक इन दैट, ओके। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बेटा। ये सब आपको देख के लगता रहेगा नया है, बिकॉज ये मैथ्स आ रहा है ना, इसमें मैथ्स आ रहा है, पहली बार आप देख रहे हो इंटीग्रेशन, इसलिए नथिंग टू वरी अबाउट इट, नथिंग टू वरी अबाउट इट। प्रैक्टिस करो, देखो हो जाएगा। एक बार देखो, दूसरी बार वापस देखो और फिर खुद से करने की कोशिश करो, ओके। एग्जांपल 4, सपोज a is equal to 2v, suppose a is equal to 2v and they say that find, okay, find the velocity, find the velocity when x is 2 meter if time is equal to, okay, if x is equal to 2 meter if velocity is equal to 2 meter per second when x is equal to 1 meter. Find the velocity when x is 2 such that when velocity is 2 x is equal to 1, and next part बोला है find वापस velocity when time is 2 seconds such that if v is equal to 1 meter per second at time is equal to 1 second. चल देखते हैं यार सॉल्यूशन में। पहले ही दिया क्या बॉस? एक्सेलरेशन चाहिए, क्या? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। बेटा क्या करूं? सर इंटीग्रेशन करना है, ये तो क्लियर है। आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इक्वेशन क्या बॉस? a is equal to 2v, a is equal to 2v, यहां x के टर्म में चाहिए। कैन आई राइट एक्सेलरेशन एज dv by dt is 2 times v? ये नहीं चलेगा बिकॉज मेरे को x लाना है इसमें, बिकॉज x के टर्म्स में। तो मैं क्या करेगा इसको? dv by dt into dx by dx। याद है what is dx by? इसको रीअरेंज कर, this is dv by dx into dx by dt, नीचे वाले टर्म को रीअरेंज कर दिया। what is dx by dt called as v? so v dv by dx is equal to 2v, ये v और v cancel, so what do I get? dv is equal to 2 times dx. now integrating both the sides, integration of dv, integration of dx, x का लिमिट क्या है भाई? फ्रॉम 1 टू 2। जब x तेरा 1 था तो वेलोसिटी कितना था? 2। x तेरा 2 है तो वेलोसिटी अननोन है। बोल व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv? v from 2 to v। 2 integration of dx is x from 1 to 2। what is this? what is this? this will be what? v minus 2 is equal to 2 times 2 minus 1। v minus 2 is equal to 2, so v is equal to how much? 4 meter per second। खत्म, 4 meter per second। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये सिंपल है। b पार्ट वापस a is equal to how much? 2v। now this is in terms of time, तो a को क्या लिखेगा? dv by dt is 2v, so dv by d is equal to 2 times dt, integrating both the sides, dv by d is 2 times integration of dt,
This is log of v is 2 times t. लेकिन लिमिट्स इंपॉर्टेंट है बॉस, लिमिट्स इनके ओके इंपॉर्टेंट है. टाइम का लिमिट क्या था? फ्रॉम 1 to 2. तभी v का लिमिट क्या है? फ्रॉम 1 to b. 1 to b. So this is log of v minus log of 1. 2 times 2 minus 1. But log of 1 is 0. मैंने लिखा है. So we get log of v is equal to 2. Now, so anti-log on both sides. So v is what? E raised to 2. V is equal to what? E raised to 2. Okay. That is integration करेंगे तो ऐसा है. Okay. That is some examples which I took with us. Some examples which I took. Okay. Now let me rub the board. कुछ questions हम board के ऊपर भी करेंगे. This is not the end. कुछ question करते हैं ना. 7-8 question और करते हैं. थोड़ा grip लाते हैं integration पे. That is in our next video. Immediate next video.